So hi everyone, today we have a special guest on our channel. We have Ujjwal with us. So Ujjwal, would you like to introduce yourself once? First of all, thank you, Aziz, for inviting me on your YouTube channel. Hi guys, myself Ujjwal Rochaya, graduated from NIT Jalandhar, and currently I'm working as a SD at Ultimate Kronos Group. And apart from my professional work, I'm a part-time Instagram content creator also. So that's all about me. Right, and he also has an Instagram profile, like he said, where he creates some great content called NoobTuber. So I'll give a link to the profile in the description. You guys can check out his content as well. And in today's video, we'll be getting to know his journey to UKG, like what all he did to get there, basically. So Ujjwal, would you like to start us off with the interview experience of UKG, like what all rounds were there, what all happened, how was it? Yeah, there are four rounds for me. One is the OA round, and another Mm-hmm. two rounds was technical interview, and last one is the HR interview. So if you talk about the Mm-hmm. OA online assessment, so there was a duration of OA was 45 minutes. There was Okay. one DSA question and 20 MCQ question. DSA question Mm-hmm. was lead code medium, you can say. If you are doing if you giving regular basis contest on lead code, so you would definitely do that Hmm. question. And 20 question was MCQ question, which was Hmm. related to core fundamental of like OS, DBMS, computer native. Sometimes come some pseudo code. You can ask what's the error in this code and what will be Hmm. the output. Yeah. That kind of MCQs. And Hmm. MCQ level was kind of medium. DSA also medium Hmm. and MCQ question was also medium. So after Hmm. two days, I got the interview shortlist round for my Hmm. first interview. My first interview was an online interview. So Mm-hmm. in that my interview was completely based on my resume. They Hmm. did not ask me any single DSA question. To be honest, Okay. they asked me to from my resume itself. So Mm-hmm. whatever I write in my resume, like project, what's my experience, they ask about my previous experience, everything, uh, like what project I did, what tech stack I use, why I use. Some question was asked related to SQL also, uh, Okay. and mm, they asked me to some core fundamental also, like oops DBMS, and Hmm. Yes. they asked the some question about this software development life cycle method also. So Okay. like I would like to give an advice for anyone who give Mm-hmm. the interview to UKT to try to explain your answer like you are explaining Mm-hmm. your friend. Like don't Hmm. explain Correct. like you are giving interviews and something all. Hmm. Give the Yes. you give your interview like you are explaining something to your friend. That's all. Hmm. And be confident for that interview. After my first interview, I got called for second interview after 2 days, and that interview was the offline mode. So they asked me Okay. to visit a office in Noida, and second interview was offline. So second interview also based on the resume. In Okay. that interview also, they asked me about my project, my hobbies, Mm-hmm. what I did, my previous experience. Like I did some freelance project, so they asked me to how you did get those opportunities for freelance project. I told Mm-hmm. them my journey about the freelancing career, and they asked me too about why I prefer UKG. So Hmm. I would like to share, if you are giving an offline interview, so please research something about UKG, what UKG is doing, Hmm. what software they are developing, what problem they are solving. So they will ask you definitely about it. And their Hmm. and interviewer focused on in UKG, a word is very famous, unified engineer. So Hmm. the reason behind they did not ask me a DSA question was unified engineer, because they are focusing on hiring a unified engineer. What means they are hiring someone who can do everything. If they know, but they Hmm. don't know. Just Okay. they like you are always ready to learn something new. Always, Hmm. like you are ready to for testing, front end, back end, DevOps, everything. That's why Hmm. that's the reason they did not ask me any DSA question. And, Hmm. because I did not mention anything about DSA in my resume, that's I
my resume was 90% of project based. So this is Hmm. also one of the reason they did not ask me to a DSA question. Like if you are given an interview to at UKG, so present yourself as like अगर आपने कुछ भी नहीं किया, लाइक आपने कॉलेज में ओनली फ्रंट एंड प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने बैक एंड का कुछ नहीं किया, तो इंटरव्यू को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि आपको ओनली 1 to 2 वीक्स चाहिए टू स्विच टू बैक एंड Hmm. एंड यू आर रेडी टू गो, Yeah. ready to start Hmm. anything. Same as if you did not do anything related to DevOps, like Docker, Kubernetes, anything. Present yourself as like, give me 2 to 3 weeks. I am ready to Hmm. work on that tech also. Yes. एंड इस पार्ट में आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करना हो, नहीं कि ऐसा नहीं कि आपने Hmm. बस बोल दिया, इंटरव्यूअर को ऐसा Hmm. लगना चाहिए कि यस यू कैन डू एनीथिंग, Hmm. डेफिनेटली कैन डू Yeah. इट. So that's how this was my second interview. And this interview they asked me some HR related question also, like my hobby, Hmm. my parents, about my parents, my school journey, like 10th, 12th, and my college journey, what I did in my college, something Hmm. like that. Hmm. And Okay. after that, after in offline mode in Noida office, after 1 hour, I got a message. I am shortlisted for the next round, which was the HR round. Hmm. इन HR राउंड बेसिकली जो HR के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक अपनी फैमिली बैकग्राउंड हो गया, आपने क्या किया, आपकी क्या हॉबीज है, तो उसी पे Hmm. डिस्कशन हुआ था. एंड उन्होंने Hmm. मेरे से ही पूछा कि मैं किस चीज़ के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी ट्रिक यूज की थी, लाइक Hmm. जो HR था उनके ऑफिस में मेरा इंटरव्यू था, तो उनके ऑफिस में Okay. कुछ लाइक इवेंट्स की फोटोज थी, तो मैंने उनसे रिलेटेड ही उनसे उनको क्वेश्चन पूछा था. Oh, ये इवेंट्स nice. आपने क्या ऑर्गेनाइज हुआ था, कब हुआ था, क्या यूकेजी ने ये हाँ. करवाया, या फिर अपार्ट फ्रॉम यूकेजी आप किसी और टीम के साथ भी पार्टिसिपेट करती हो इन सब के बना. तो यहाँ पे मैंने एक चीज की कि मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया उनकी हॉबीज में भी, Hmm. वो भी मेरे थॉट से रिलेट कर पाए. Right. एंड एचआर होने के बाद जब मैं नोएडा से निकल गया था घर के जाने के लिए, तो ट्रेन में ही मेरे को ऑलमोस्ट जितने भी लोग उस दिन इंटरव्यू दे रहे थे अपने, Hmm. तो अराउंड 5 to 5:30 PM हम सबको रिजल्ट आ गया था कि यू आर सिलेक्टेड एंड योर जॉइनिंग इज डेट. Hmm. तो ये Hmm. Hmm. तो पूरे अगर इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें, तो मैंने कुछ ट्रिक्स यूज की थी. फर्स्ट था कॉन्फिडेंस, Hmm. आपको कॉन्फिडेंस पूरा Right. दिखाना है. एंड सेकंड वन था कि आपने रिज्यूमे में जो जो लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको ए टू जेड आना चाहिए, उसके अंदर से आपको Hmm. कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि Yes. मैंने आपको पहले ही बताया कि दे आर हायरिंग यूनिफाइड इंजीनियर. तो अगर आपने जो Hmm. किया उसी के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, तो वहां पे एक गलत पर्सपेक्टिव बनेगा आपके लिए कि आपने आप तब Hmm. जो किया उसी में ही अच्छा नहीं किया, तो आप आगे कैसे कर पाओगे. तो ये वाला यूनिफाइड था. एंड थर्ड वन कि आपको जो भी इंटरव्यूअर पूछे, तो ट्राई करो कि उनकी हॉबीज वो किस चीज से रिलेट कर सकते हैं, ट्राई करो. अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, आप उसी Hmm. रिगार्डिंग एचआर से या फिर इंटरव्यूअर से आप अपना क्वेश्चन पूछो. एंड कंपनी के यूकेजी के बारे में भी पूछो, यूकेजी के बाद थोड़ी रिसर्च करके जाओ, यूकेजी के बाद थोड़े क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओ, सो डैट कि तुम एचआर से क्वेश्चन पूछ सको. क्योंकि Hmm. यूजुअली हर एचआर में आपसे काउंटर क्वेश्चन के लिए बोला ही जाता है कि आप क्या हाँ. रख करो. सकते हो Yes. ढूंढने से, आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपकी, इट Hmm. ऑल एवरीथिंग जो भी स्टैंडर्ड जो एचआर क्वेश्चन होते हैं वो सब तो आपको प्रिपेयर करके जाना ही होगा. Hmm. एंड जहाँ तो ये था पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस. Hmm. एनीथिंग और ऐसे. Hmm. Nice. Nice, man. So nice tips, by the way, that you gave about the tricks and all during HR rounds. Those tricks will really help in the HR round, because HR round is more about your personality rather than technical skills. You know, it's also about your communication, the confidence, those kind of things. तो जैसा आपने बताया, एक ऑनलाइन असेसमेंट मतलब ऑनलाइन टेस्ट हुआ पहले, देन आपके 3 इंटरव्यूज हुए, लास्ट इंटरव्यू वाज द HR राउंड, एंड थ्रू आउट द टेक्निकल इंटरव्यू नो DSA वाज आस्क्ड,
बट ओए में डीएसए था, वन प्रॉब्लम डीएसए यू सेड लाइक ओए में था, उसका लेवल क्या था मतलब आपको, इफ यू रिमेम्बर हाँ, या लेवल? उनका लेवल अगर लीड कोड मीडियम मान लो, कि अगर आप लीड कोड पे देखोगे तो वहां पे कुछ परसेंटेज लिखा होता है कि सक्सेस हम्म रेट क्या है, 40%, 30%। हम्म तो अगर आप 40 to 45% सक्सेस रेट वाले मीडियम लीड कोड कर पा रहे हो, तो आप इजिली कर लोगे, वो कोई इश्यू नहीं हम्म उसके अंदर। एंड एमसीक्यू जहां तक बात करें, एमसीक्यू भी मीडियम थे, जो कि अपने कोर फंडामेंटल्स होते हैं, और उसमें भी कुछ हम्म सूडो कोड भी थे। तो हम्म सूडो, इट विल बी बेटर कि आप सूडो कोड रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस पहले से करके जाओ, क्योंकि सूडो हम्म कोड में यूजुअली तो हम कंपाइलर से रन करके देखते हैं, लाइक अपने हाँ क्या भी सूडो, वहां पे आप ये हम्म नहीं कर सकते। ड्यूरेशन 45 मिनट्स का था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा कि एक डीएसक्यू से 20 एमसीक्यू। इट वाज 20 एमसीक्यू, आई एम नॉट कंफर्म, इट वाज मे बी 15 एमसीक्यू और 20 एमसीक्यू अराउंड, आई एम नॉट कंफर्म, बट वन डीएसए वाज दी। नाइस नाइस मैन। एंड लाइक यू मेंशन्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू था आपका रेज्यूमे, एंड काफ़ी चीज़ रेज्यूमे से प्रोजेक्ट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया होगा, थोड़ा सा डीएसए भी था, तो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस वाला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जैसे आपने बोला है। तो आपने प्रिपेयर कैसे किया था इस इंटरव्यूज के लिए, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन जर्नी और स्ट्रेटेजी लाइक? हाँ, देखो, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था वो ऑनलाइन मोड था, तो उस टाइम पे मैंने डीएसए एंड रिज्यूमे दोनों प्रिपेयर किया था। लेकिन हम्म यूजुअली पता ही चल जाता है कि सभी अपने कुछ दोस्तों का भी था इंटरव्यू, तो उनका पहले हो जाता, तो वहां से हम इंटरेक्शन ले सकते हैं कि उनसे क्या पूछा। हम्म तो वहां पे मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जिन लोगों ने अपने रिज्यूमे जो लिख रखा था उनसे वो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक हम्म कुछ दोस्त थे जिन्होंने प्रोजेक्ट नहीं कर रखे थे, उनका डीएसए था, तो उनसे डीएसए पूछे गए थे। उन लोगों ने प्रोजेक्ट बना हम्म रखे थे, उनको प्रोजेक्ट के पूछे थे। हम्म उन लोगों ने कोर फंडामेंटल जो चीजें होती है वो ज्यादा लिख रखी थी, तो उनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। तो वहां से मेरे को थोड़ा हम्म आइडिया लगा कि यस, मैं डीएसए को थोड़ा सा साइड करके रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट है उनको अच्छे से मैं कर सकता हूँ। तो वो यस मैंने अच्छे से किया था। एंड जो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने एक वहां पे एक और ट्रिक यूज की थी कि लाइक हम ऐसे नॉर्मली एक्सप्लेन करते थे, लेकिन वहां पे मैंने हम्म इंटरव्यू से पूछा था कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके व्हाइट बोर्ड के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को हम्म क्वेश्चन पूछा था कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मेथड्स क्या है, डेवलपर लाइफ साइकिल हम्म क्या है, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड प्रोडक्शन तक। तो इसके हम्म दो तरीके हो सकते थे, या तो मैं एक वर्बली आपको बताऊं कि कैसे हो हाँ सकता है हर एक स्टेप, एंड सेकंड वन था कि मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके उसमें हर एक स्टेप में क्या क्या हम्म होता है थ्रू राइटिंग, राइटिंग में एंड हम्म स्टेप के थ्रू। तो वो मैंने किया था। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ जाए, तो प्लीज हम्म आस्क टू इंटरव्यू टू शेयर योर स्क्रीन, एंड वहां पे व्हाइट बोर्ड शेयर करके आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। एंड यहाँ पे आपको एक और एडवांटेज ये मिल जाता है कि जब आप बोल रहे होते हो तो आपको ट्रैक पे पता रहता है कि आपने अब तक क्या क्या बता दिया है उस पर्टिकुलर हाँ क्वेश्चन यस रिलेटेड, क्योंकि आपने वहां पे लिख रखा होता है। जैसे करेक्ट प्रोसेस बनता रहता है कि हाँ मैंने ये बता दिया ना, अब ये बताना, अब ये बताना। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। तो वहां पे तो वो जो क्वेश्चन था वो मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मैं मेरे को राइट लगता है कि सेकंड इंटरव्यू में जाने का एक जो एफर्ट लगता है, वो जो स्क्रीन शेयर करके मैंने अप्लाई किया था वो वर्क किया था मेरे केस में। तो हम्म आई वुड सजेस्ट कि आप भी ये ट्राई कर सकते हो अच्छे से। Hmm. Right. And this is a great trick. I would also like to, put emphasis on this because I've also heard from a lot of people like this. Even you can use this not only for CS fundamental or SDLC question, if it's a system design question या डीएसए का भी क्वेश्चन है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या मैं व्हाइट बोर्ड से या स्केच पैड से कर सकता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली दिल से यस। एंड फिर आप अच्छे से उनको एक्सप्लेन करोगे तो दैट विल बी वेरी इंप्रेसिव फॉर देम, और लोग काफी इंप्रेस हो जाएंगे वहां कि से आपकी हाँ जो किसी को समझाने की एनालिटिकल हाँ थिंकिंग है वो भी पता चलती है कि आप बढ़ेगी। कितने अच्छे तरीके से आप किसी को समझा सकते हो। क्योंकि जब आप ऑफलाइन अगर ऑफिस में ज्वाइन करते हो तो आपको टीम को बताना पड़ता है कि क्या होता है, तो वहां पे ये चीज भी काम करेक्ट। आती है कि आप कितने अच्छे से किस टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हो। तो इट वुड तो ये एक तरीके से एडवांटेज ही मान सकते हो आप अपने ऊपर। Hmm. Hmm. Right. So definitely, this is a tip that you can use for your next interview. And I think we have covered pretty much everything about Ujjwal's interview experience of UKG and the amazing tips that he has shared.
And one more thing, guys, soon we'll be making a video, a podcast about content creation, because Ujjwal is a pretty active content creator. Like I said, his profile, his Instagram profile will be in the description. Make sure that you drop him a follow and check his content out. So soon we'll be making a video about content creation, how you can get into it, the tools you can use, things like that. So make sure that you subscribe for that and follow Ujjwal as well. So yeah, thanks Ujjwal for coming on my channel and sharing your journey about UKG. I hope it will help a lot of students who are planning to appear for UKG's interview. So yeah, thank you. Thank you, Asis. Nice to meet you.